Assalamu alaikum. My name is Tahir and you are watching live HR Consultants Pakistan. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने तमाम व्यूवर्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आज का जो हमारा स्पेशल सेशन होने जा रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में RMIT यूनिवर्सिटी। इस पर हमने स्पेशल डिस्कशन करने के उनसे भी इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स को यहाँ पर एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा, वो स्टूडेंट्स स्पेशली जो RMIT यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, आज लाइव अपनी क्यूरीज को प्लेस कीजिए। रिलेटेड आइल्स यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर, आपकी कोई भी क्यूरीज है, आपकी तमाम क्यूरीज को लाइव क्लियर किया जाएगा। रिलेटेड वीज़ा एडमिशन प्रोसेस, जो भी आपकी क्यूरीज हैं, आप लाइव कॉल कर सकते हैं 034647470043 पर अपनी लाइव क्यूज को डिस्कस कर सकते हैं। और RMIT के आज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा मिस्टर फ़हीम, जो RMIT के इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव है। और इसी के साथ आज हमने इनवाइट किया है हमारी HR की सीनियर एडमिशन ऑफिसर है मिस इरम। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू दैट यू जॉइन अस टुडे। Yes, Miss Iram, now over to you. You can continue, please. Thank you very much, Tahir. First of all, I would like to welcome to all the viewers who have joined the live session for RMIT University with us, HR Consultants. And I would also like to welcome Mr. Fahim for joining us for this particular session, as he is an in-country representative of RMIT University. And today we will gonna ask all the relevant questions for our viewers and the students who have joined us right now for this particular session regarding the ranking, courses, campuses, scholarship, for all the information of RMIT University. And I think it will be a very informative session for all the sessions. So Fahim bhai, how are you? Hope you are fine. Ji, Assalamu alaikum everyone. Alhamdulillah, I am good. How are you? I'm fine, thank you very much. It's good to see you after a long time. So we will gonna start. Yeah, likewise. Okay, we will gonna start off with a bit of ranking and the courses, location, and the campuses of the university, so that the student could get the basic information. Then one by one, we will gonna go to the different faculties and the scholarship and the entry requirements. Sure. So basically, we are a global university of technology, design, and enterprise. And if we talk about ranking, we are ranked in the top 1% of universities globally. And if we talk about the recent US World University rankings, we are ranked at 223rd. And if we talk about particularly in Australia, we are ranked at number 15 in Australia. That's good. That's very nice. Okay, and now I would like to talk about the campuses. Main campuses कौन-कौन से हैं, or are you offering all the courses in every campus या किसी main campus में इनके main courses offer हो रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे basically 3 campuses हैं in Australia. Our biggest campus is Melbourne City campus, जो located in heart of main CBD. Then we have Brunswick campus, and we also have Bundoora campus in Australia. और अगर outside the Australia हम बात करें तो हमारे 3 campuses हैं. First one is in Hanoi in Vietnam, और second campus भी वियतनाम में in Ho Chi Minh City, और third campus जो है वो हमारा यूरोप में है, स्पेन में in Barcelona City. Okay. Now I would like to talk about the courses, because RMIT is basically renowned for engineering and IT. इनके main बहुत ज़्यादा ये courses stream हैं. So I would like you कि आप अपने main सारे ही courses undergrads और postgrads के share कर दें हमारे students के साथ, और फिर हम उनकी entry requirements और IST और scholarship की बात करेंगे. जी बिल्कुल. Basically, we have 3 academic colleges, or under the umbrella of these 3 academic colleges, हमारे 19 different academic schools हैं. The first one is College of Business and Law, College of Design and Social Context, College of Science, Engineering and Health. अगर हम जो start करें with business, तो हम business related programs में offer कर रहे हैं accounting, business IT, entrepreneurship, logistics, economics, finance, marketing, management, HR, public relations and international business. उसके बाद अगर बात करें कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें हमारे पास आ जाता है आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, डिजिटल मीडिया, फैशन एंड टेक्सटाइल्स,
journalism, fine art, photography, education, interpreting, translating, urban planning, screen and media, games and animation, property, construction, and project management. Then if we talk about College of Science, Engineering and Health, इसमें हमारे पास programs available हैं in aerospace, mechanical and automotive, civil, environmental and chemical, advanced manufacturing, electrical and software, computer science and IT, biotechnology, food production and nutrition, nursing, laboratory medicine, medical radiation, surveying, aviation. So we have very vast variety of programs available throughout our campuses. Almost 480 plus जो है हमारे पास programs हैं जो हम offer करते हैं. Huge range of courses. So Exactly. I must say the students who are interested to study in Melbourne actually, so RMIT is the best option, which is offering you the huge range of courses in the field of business, engineering and IT and sciences. So almost हर field को हम cover करते हैं और हमारे पास very vast variety of programs available हैं, as I mentioned earlier. Okay, that's right. So फिर मैं थोड़ा सा entry requirements को discuss कर लेते हैं undergrads और postgrads पे. I think starting off with the postgrads master's level पे आप पाकिस्तान से section 1 और 2 universities की क्या requirement है CGPA की, और अगर if you are getting accepted the application for section 3 university तो उनके लिए क्या entry requirements और CGPA होगा? बेसिकली हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एयर इन पाकिस्तान, उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बैचलर्स डिग्री इक्वलेंट टू ऑस्ट्रेलियन बैचलर डिग्री कंसिडर होती है एज पर नूसर. तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इससे पढ़े हुए हैं और ऑलरेडी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स. अनफॉर्चुनेटली सेक्शन 3 और 4 के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी बैचलर डिग्री इज नॉट इक्वल टू ऑस्ट्रेलियन बैचलर डिग्री. दैट इज व्हाई दे आर नॉट एलिजिबल फॉर आवर मास्टर्स प्रोग्राम. बट यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शनल है एज पर नूसर के अगर इंजीनियरिंग डिग्रीज की हुई हैं तो फ्रॉम सेक्शन 3 यूनिवर्सिटीज, so they can apply for master's program because their bachelor degree is equivalent to Australian bachelor's degree. और इसके अलावा अगर हम एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमारे पास जो मिनिमम क्राइटेरिया फॉर CGPA इट्स 2.4 आउट ऑफ 4 CGPA. और इसमें मैक्सिमम जो है जो 10 फेल सब्जेक्ट्स आर एक्सेप्टेबल इन द होल डिग्री प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री की हुई है ऑनर्स और उसमें less than 10 or maximum 10 subjects failed किए in the whole duration. 4 years. तो हम जी exactly, तो हम उनको accept कर सकते हैं. Otherwise sorry to interrupt, ये बहुत बड़ा favor दे रहे हैं because most of the universities are not accepting more than 5 to 6 backlogs. वो इससे ज़्यादा accept नहीं करती है. Exactly. और अगर हम बात करें फॉर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स तो हमारे पास जो पोस्ट ग्रेड और अंडर ग्रेड प्रोग्राम है, मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम्स की सेम एंट्री रिक्वायरमेंट है. इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज वी रिक्वायर ओवरऑल 6.5, नो बैंड लेस देन 6.0 इन ईच मॉड्यूल. और अगर किसी स्टूडेंट का 0.5 की डेफिशिएंसी है देन वी कैन पैकेज देयर ऑफर विद 10 वीक्स ऑफ LA कोर्स. हम स्टैंडर्ड 10 वीक्स ऑफर करते हैं. वी डू नॉट ऑफर 15 और 20 वीक्स और 5 वीक्स. सो वी ओनली ऑफर 10 वीक्स ऑफ LA कोर्स. 10 weeks LA course किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में 0.5 लेस होने के लिए, नॉट मोर देन दैट. एग्जैक्टली. अच्छा भाई, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक काफी पॉपुलर कोर्स है बिजनेस के स्कूल ऑफ बिजनेस में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा बिकॉज पाकिस्तान में ये मेन स्ट्रीम्स है और बिजनेस के जो स्कूल ऑफ बिजनेस है उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट काफी डिमांड में है. जी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारे पास जो बेसिकली प्रोग्राम्स हैं उसमें अगर आर यू आस्किंग अबाउट पोस्ट ग्रेड और बोथ के आपको अंडर ग्रेड भी पोस्ट ग्रेड के लिए? ऑलराइट. तो हमारे पास बेसिकली जो ऑफर हो रहा है वो जी आ रही है आवाज.
तो हमारे पास अंडर ग्रेड प्रोग्राम में भी अवेलेबल है स्पेशलाइजेशन विद बैचलर ऑफ बिजनेस, और अगर हम पोस्ट ग्रेड की बात करें तो उसमें भी मास्टर ऑफ बिजनेस स्पेशलाइजेशन इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स अवेलेबल है। इट्स अ 2 years प्रोग्राम, और ये अवेलेबल है सिटी कैंपस में। और अगर इसकी हम बात करें ट्यूशन फी, तो इट विल कॉस्ट अराउंड 31,680 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और हमारे हर साल 2 इंटेक्स होते हैं बेसिकली, फेब और जुलाई इंटेक। तो अगर कोई स्टूडेंट सेक्शन 1, जैसे मैंने कहा सेक्शन 1 या 2 से पढ़े हुए हैं और ऑनर्स डिग्री है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एज वेल। ओके, अब अंडरग्रेड प्रोग्राम में भी हमारे पास ये सारी ही मेन स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, और उनमें फिर आप एंट्री रिक्वायरमेंट्स का बता दें, जैसे कि अभी रिसेंटली ए लेवल के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, और इवन हमारे जो एचएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? आर दे एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट बैचलर्स प्रोग्राम इन आरएमआईटी? जी, उसमें जो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें फॉर ईयर 12 स्टूडेंट्स, जो हमारा लोकल करिकुलम है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, तो वो अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट बैचलर्स के लिए नहीं एलिजिबल, लेकिन ऑल्दो दे कैन अप्लाई फॉर पाथवे प्रोग्राम, दे कैन पैकेज देयर ऑफर ईदर विद डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स और एसोसिएट डिग्री लीडिंग टू बैचलर, और ऑल्सो वी हैव फाउंडेशन लीडिंग टू बैचलर एज वेल। तो अगर हम फाउंडेशन से स्टार्ट करें तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है फॉर एंट्री रिक्वायरमेंट, वी रिक्वायर एटलीस्ट 55% मार्क्स इन ईयर 12, और डिप्लोमा की बात करें तो वी रिक्वायर 65% मार्क्स और अबव in year 12 to get entry into diploma as well for associate degree. So entry requirements, सॉरी टू इंटरप्ट, ये इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिएगा, एसोसिएट डिग्री और ये डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स के लिए। जी, उसमें हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं उसमें कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जिनमें डिप्लोमा की पैकेज ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ एसोसिएट डिग्री। तो बेसिकली डिप्लोमा 1 year प्रोग्राम होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स कैन प्रोग्रेस इनटू सेकंड ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री, उनको क्रेडिट्स मिल जाते हैं। और अगर वो वाया एसोसिएट डिग्री एनरोल होते हैं हमारे पास, तो बेसिकली इट्स अ 2 years डिग्री, 2 years program. So after completing 2 years of degree, they can progress into 3rd years of bachelor's. तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 3 years की बैचलर्स डिग्री होती है, इंजीनियरिंग 4 years होती है। तो अगर स्टूडेंट पैकेज कर रहा है एसोसिएट डिग्री विद फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ आईटी और बैचलर ऑफ बिजनेस, देन वो 3rd year में प्रोग्रेस कर जाएगा, उसको फुल क्रेडिट्स मिल जाएंगे 2 years के। अदरवाइज अगर वो इंजीनियरिंग का पैकेज ऑफर लेता है तो वो 3rd year और फिर 4th year उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और इन द एंड वो इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर लेगा। इसमें जस्ट स्लाइट डिफरेंस है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। एसोसिएट डिग्री के लिए वी रिक्वायर ओवरऑल 6, नो बैंड लेस देन 5.5, और अगर हम बात करें फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम, देन वी रिक्वायर 5.5, नो बैंड लेस देन 5.0 इन ईच मॉड्यूल। एकेडमिक रिक्वायरमेंट इज सेम। आई थिंक ये काफी डिटेल आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जिसमें स्टूडेंट्स को आई थिंक। जी मिस इरम, जी आवाज आ रही है मिस इरम आपको? आपके नेक्स्ट सवाल से पहले हमारे साथ कुछ लाइव कॉलर्स अवेलेबल हैं, तो हम उनको लेना चाहेंगे, ठीक है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहाब, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहाब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अयाज मलिक, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, बिल्कुल आ रही है। जी अयाज कैमरा ऑन कीजिएगा। सॉरी, कैमरे पे थोड़ा मेरे कोई बात नहीं। जी जी अयाज, कैसे आप? ठीक है, बताइए क्या सवाल है आपका? अच्छा, एक तो ये कि मैं इसका बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में पूछना चाहूँगा कि इसका एडमिशन्स का प्रोसीजर, फी स्ट्रक्चर, ये क्या सिस्टम होगा? यानी कि मैंने अभी एफएससी किया हुआ है और मैं अभी बीबीए कर रहा हूँ, यानी कि करंट एजुकेशन जो मेरी है। तो मैं अगर इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहूँ, यानी कि मार्केटिंग में जाना चाहूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? प्रोसीजर वगैरह, एडमिशन, वीज़ा, वो चीज़ें मैं क्वेरी करना चाहता हूँ। जी फहीम साहब बताइएगा। जी अयाज, अगर आप काइंडली कंफर्म करें आप किस यूनिवर्सिटी में अभी इनरोल्ड हैं और कितना आपका ये बैचलर डिग्री जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है? मैं एरिड एग्रीकल्चर में पढ़ रहा हूँ और मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और आपकी
परसेंटेज क्या थी एफएससी में? एफएससी में मेरी थी 69%। 69। आइल्स किया हुआ है आपने? नहीं, आर्ट्स नहीं किया हुआ। आइल्स नहीं किया हुआ आपने, ठीक है। इसमें हमारे पास बेसिकली बैचलर ऑफ बिजनेस अवेलेबल है प्रोग्राम, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया है पाकिस्तान में ना, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 2 सेमेस्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लें अपने, और देन हमारे पास आप अप्लाई करें फॉर बैचलर प्रोग्राम। अदरवाइज अगर आप स्ट्रेट अवे अभी अप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्ट बैचलर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको बेसिकली डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स पैकेज ऑफर लेना पड़ेगा। 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम होगा विच लीड्स टू 2nd ईयर ऑफ बैचलर्स। उसके लिए आपको आइल्स रिक्वायर्ड होगा ओवरऑल 5.5, नो बैंड लेस देन 5.0। और हमारा जो नेक्स्ट इनटेक है वो फरवरी 2021 में है। और अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो डिप्लोमा ऑफ कॉमर्स की ट्यूशन फी है अराउंड 28,800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, होपफुली अयाज जी आपको अयाज आपको आवाज आ रही है? अपना माइक जो है वो आप ऑन कीजिएगा। आवाज आ रही है यस, आपको? यस बिल्कुल आ रही है, क्लियर हो गया मुझे, ठीक हो गया। जी, इसके अलावा आपकी कोई इंक्वायरी है? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी फौरन से व्हाट्सएप कीजिए। मिस इरम जावेद का नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 03225757 पर। अभी अपने डॉक्यूमेंट्स इनको व्हाट्सएप कीजिए। इसके अकॉर्डिंगली जो भी अगर आपसे कोई क्यूरी मिस हो गई है तो इंशाल्लाह आफ्टर लाइव सेशन वो भी आपको क्लियर की जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑन स्पॉट आपकी एप्लीकेशन ले ली जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ चाहते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी बिलाल अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? अपना माइक ऑन कीजिएगा। आई थिंक नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, आवाज़ आ रही है आपको? जी मोहसिन अस्सलाम वालेकुम, अपना माइक ऑन कीजिएगा। मैं जिन व्यूअर्स के नाम मेंशन करूं काइंडली अपने वो माइक ऑन करने ताकि आवाज़ आ जाए उनको। जी मोहसिन आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। जी कैसे हैं आप? ठीक है मोहसिन? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए मोहसिन, क्या सवाल है आपका? अगर कैमरा ऑन कर सकते तो ऑन कर लें, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। सर कर लेता हूँ। सर मैंने पता करना था कि एमएससी प्रोग्राम, दूसरे एमफिल प्रोग्राम में कौन कौन सा करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी एमएससी फिजिक्स। ठीक है। जी फहीम साहब, एमएससी फिजिक्स है। और सॉरी आप थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे अपना एकेडमिक बैकग्राउंड। एमएससी 2 इयर्स आपने किया और उससे पहले क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? सर पहले बीएससी है 2 इयर्स, उसके बाद एमएससी 2 इयर्स की है। ठीक हो गया। और आप मास्टर्स इन फिजिक्स करना चाह रहे हैं? जी सर कर लिया, मास्टर इन फिजिक्स कर लिया है, एमएससी फिजिक्स। उसके बाद आगे एमफिल आपका करना चाह रहा हूँ। एमफिल इन फिजिक्स करना चाह रहे हैं? ठीक। उसमें बेसिकली आपकी ऑनर्स डिग्री नहीं है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगेन मास्टर्स बाय रिसर्च को ना परसू करें, मास्टर बाय कोर्स वर्क को परसू करें। ठीक है, क्योंकि आपने 2 इयर्स आपकी स्टडीज हैं और उसके बाद फिर 2 इयर्स मतलब अंडर ग्रेड 2 इयर्स है, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेड लेवल पे भी 2 इयर्स, तो अगर सम अप करें तो 4 इयर्स आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इन मास्टर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो उसमें अगर फिजिक्स की बात करें मास्टर ऑफ साइंस आ जाता है, फिर उसके अंदर फर्दर स्पेशलाइजेशंस हैं डिफरेंट ना, वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसकी एवरेज कॉस्ट जो आपको कॉस्ट करेगी वो अराउंड अबाउट 33 to 36,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और एंट्री रिक्वायरमेंट्स मैंने ऑलरेडी मेंशन की थी कि हमारे जो पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स हैं उनमें ओवरऑल 6.5, नो बैंड लेस देन 6.0 इन ईच मॉड्यूल रिक्वायर्ड है। और जो नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक होगा वो फरवरी 2021 है।
इफ यू वांट टू अप्लाई, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो HR कंसल्टेंट्स को सेंड कर दें और ये आपको एप्लीकेशन की सारी गाइड कर देंगे, थ्रू आउट द प्रोसेस आपको असिस्ट करेंगे। ठीक जी सर। साहिर, कोई और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ लाइन पे? जी बिल्कुल मिस, अभी कॉलर्स हैं कुछ 3 to 4 कॉलर्स हैं। जी मोहसिन, आपका इसके अलावा कोई सवाल है और कोई क्यूरी? नो सर, थैंक्स, बस जी। अच्छा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं रिपीट करूँ 0322575780 पर अपने जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं अभी इनको फॉरवर्ड कीजिए मिस इरम जावेद को। उसके अलावा अगर आपकी ठीक कोई सर। क्यूरी रह गई है यहाँ पर या फिर अगर आप फर्दर अप्लाई करना चाह रहे हैं, फौरन से मिस इरम आपकी एप्लीकेशन प्लेस करेंगी। तो फौरन से अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कीजिए अभी। एंड थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन। थैंक्स सर। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। जी अली, कैमरा ऑन कीजिएगा। कैमरा ठीक नहीं है। हेलो। जी जी अली बताइए, कैसे आप? ठीक है, बताइए क्या सवाल है आपका? एमफिल करनी है, 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए बैचलर्स के। ठीक है। या यही किस फील्ड में आप फर्दर मास्टर्स करना चाह रहे हैं? सर मैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में। और अभी किस यूनिवर्सिटी में एनरोल है? सिंध यूनिवर्सिटी। सिंध यूनिवर्सिटी। सीजीपीए क्या है? सीजीपीए क्या चल रही है? 2.79। 2.79। आइल्स किया है आपने अभी कि नहीं किया हुआ? नहीं। और कब तक एक्सपेक्टेड है आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी? जनवरी तक हो जाएगी। जनवरी में हो जाएगी, ठीक है। जी। हमारे पास बेसिकली मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफर होता है प्रोग्राम। इट्स अ 2 years प्रोग्राम। और इसका नेक्स्ट ईयर जो है 2 intakes अवेलेबल हैं, फरवरी में और जुलाई में। अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 36,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर एनम। पाकिस्तानी डॉलर। पाकिस्तानी रुपीस में आप जी ऑलमोस्ट कह लें 4 million रुपीस के अराउंड कॉस्ट करेगा पर ईयर, यानी 40 lakhs पर एनम। इसमें हम जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं स्पेसिफिकली उनको 20% कह लें फ्यूचर लीडर स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। बेसिकली इट्स अ 20% ट्यूशन फी रिडक्शन इन द होल डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। तो वो उसमें आपको 20% ट्यूशन फी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके लिए आपको आइल्स करना पड़ेगा। आइल्स ओवरऑल 6.5, नो बैंड लेस देन 6.0 रिक्वायर्ड होगा। डिग्री कंप्लीट करनी है आपने। आपके फेल सब्जेक्ट्स तो नहीं है बीच में जो आप भी अंडरग्रेड डिग्री कर रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी से? अली बताइए, आपका कोई फेल सब्जेक्ट है इन सेमेस्टर्स में जो भी? जी अली आपको आवाज आ रही है? जी अली हैदर, आपको आवाज आ रही है? जी जी बताइएगा, वो सवाल कर रहे हैं आपसे। जी मैं आपसे पूछ रहा था अली कि आप जो अभी अंडरग्रेड डिग्री कर रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी, आपके टोटल फेल सब्जेक्ट्स कितने हैं? कोई फेल सब्जेक्ट्स तो नहीं है? एक है, उसमें भी इम्प्रूव अभी करना है। अच्छा, जस्ट एक है, ठीक है, दैट इज फाइन। क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है इट इज 10 से ज्यादा फेल सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। सही। तो ये मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है। और आप अपने जैसे ही डिग्री कंप्लीट हो तो आप स्टे इन टच विद HR कंसल्टेंट्स। आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनसे शेयर कर लें तो दे विल गाइड यू द एडमिशन प्रोसेस। डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट होगी जी, आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड होगी, डिग्री कंप्लीशन लेटर, आइल्स का रिजल्ट रिक्वायर्ड होगा आपका, थ्रू आउट जो एजुकेशन आपने किया है इससे पहले, ईयर 12, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी टू गेट एडमिशन। जी अली, कोई और इंक्वायरी है आपकी? सर फीस है या स्कॉलर पे?
सॉरी, मैंने पूछा फीस है या स्कॉलरशिप पे है? मैंने आपको बताया ये आपको कॉस्ट करेगा 36,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एनम। अगर हम इसको पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट ये 4 मिलियन रुपीज आपको कॉस्ट करेगा। लेकिन इसमें सही। आपको जस्ट 20% ट्यूशन फी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। बेसिकली फ्यूचर लीडर स्कॉलरशिप हम ऑफर कर रहे हैं फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो इसके जी लिए आपको मिनिमम एंट्री क्राइटेरिया जो है हमारा वो मीट करना है। आपकी एटलीस्ट 2.4 CGPA होनी चाहिए। आइल्स का स्कोर मैंने आपको बता दिया। तो ये अगर सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं स्कॉलरशिप को। 2 इयर्स के बाकी लिए। जो जी, और जो बाकी ट्यूशन फी है वो आपको सेल्फ फाइनेंस करनी पड़ेगी, सेल्फ फंडेड होगी। सही। फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, ये पार्शियल स्कॉलरशिप है बेसिकली। ठीक ठीक। जी, थैंक कोई यू। और क्वेरी हो आपकी इसके अलावा? जी अली, इसके अलावा कोई क्यूरी है आपकी? I think we नहीं should नहीं। move जी on. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच अली, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्स अपने फौरन से व्हाट्सएप कर सकते हैं 0322575780 पर। मिस इरम का नंबर है ये, मिस इरम जावेद आपको इसके अलावा जो भी आपकी क्यूरी होगी इंशाल्लाह वो क्लियर कर देंगी। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। जी मिस इरम, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हमारे पास कुछ और भी लाइव कॉलर्स अवेलेबल हैं, तो आप अगर अपना कंटिन्यू करना चाहें सवाल कर सकती हैं। ठीक है, मैं फहीम से पूछना चाहूँगी स्कॉलरशिप के लिए कि अभी आपने ये लीडर्स चॉइस का जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में बताया, तो बाकी की जो स्कॉलरशिप की कोई डिटेल है वो भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें ताकि अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड या इवन फाउंडेशन लेवल पे भी आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जी, एज ऑफ नाउ हमारे पास जो स्कॉलरशिप्स है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, दिस इज द ओनली वन। और बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे साथ ये जो हमारा अपकमिंग इनटेक है और जो नेक्स्ट इनटेक भी होगा बेसिकली फेब और जुलाई नेक्स्ट ईयर, उसमें कमेंस करेंगे ईदर फॉर अंडरग्रेड और फॉर पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम। अगर स्टूडेंट पैकेज ऑफर लेता है विद आवर पाथवे प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल फाउंडेशन, डिप्लोमा और एसोसिएट डिग्री, देन अनफॉर्चुनेटली ये स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो ट्यूशन फीस हैं उन प्रोग्राम्स की वो काफी कंपेटिटिव हैं। दे आर ऑन द लोअर एंड इफ यू कंपेयर इट विद आवर डायरेक्ट बैचलर डिग्री ट्यूशन फीस। दैट इज व्हाई ये स्कॉलरशिप जो है फ्यूचर लीडर स्कॉलरशिप, ये पाथवेज पे अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम्स पे हैं, अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड। तो मैं फाउंडेशन के प्रोग्राम के लिए भी थोड़ी सी डिटेल्स पूछना चाहूँगी कि आर यू ऑफरिंग द स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड और एक्सटेंसिव फाउंडेशन, उसकी डिटेल्स भी थोड़ा सा बता दीजिए ताकि स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाए एलिजिबिलिटी के हिसाब से। उसमें स्टैंडर्ड ही ऑफर किया जाता है फाउंडेशन प्रोग्राम, और उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 55% मार्क्स हैं इन ईयर 12। अगर हम सॉरी not less than 55%, not less than 55, minimum 55% we require। और अगर स्टूडेंट ए लेवल के बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसमें हमें बेसिकली 3 एकेडमिक सब्जेक्ट्स चाहिए, और उसमें 1D और 2Es रिक्वायर्ड है टू गेट एंट्री इनटू फाउंडेशन प्रोग्राम। आई थिंक वो काफी फ्लेक्सिबल है स्टूडेंट्स के लिए। ओके ताहिर, इज देयर एनी अदर स्टूडेंट? यस मिस, जी जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज नहीं जा रही है। जी नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम सुमित कुमार, आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सुमित, आवाज आ रही है आपको? जी सुमित। हेलो, आवाज आ रही है सबको? जी जी बिल्कुल, नाम बताइएगा, नाम क्या जी, आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। मैंने अभी हाल ही में 2019 दिसंबर में पास आउट हुआ हूँ सर सैयद यूनिवर्सिटी से, BS इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं अभी मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मेरे मैं 2 मुल्क में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, एक तो कनाडा है और एक ऑस्ट्रेलिया है। तो मैं
जी बताइए बताइए। तो मैं प्योर इंजीनियरिंग में नहीं मास्टर्स करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग भी हो, जैसे नेटवर्किंग या डेटा साइंस वगैरह इस साइड में जाना चाह रहा हूँ। मैं हाल ही में 2 कोर्सेज भी ज्वाइन किए हैं ऑनलाइन डेटा साइंस के हवाले से, एक एआई है और दूसरा मशीन लर्निंग है। तो ये आरएमआईटी इस हवाले से क्या क्या ऑफर करती है? ठीक होगा जी फ़हीम सर। जी आप काइंडली मुझे CGPA कंफर्म करते हैं आपके जो सर जी मेरी सैयद यूनिवर्सिटी। 3.12 है ठीक, आइल्स किया हुआ है आपने कि अभी नहीं सर, किया? मैं सितंबर में। सितंबर, ठीक है। तो बेसिकली हम दो डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी है और एक मास्टर ऑफ डेटा साइंस है। दोनों 2 इयर्स प्रोग्राम है और अपकमिंग इनटेक इज फेब इनटेक। इसकी अगर हम ट्यूशन फी के बात करें तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 36,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर एनम। और इसमें आइल्स आपको रिक्वायर्ड होगा ओवरऑल 6.5, नो बैंड लेस देन 6.0, और प्लस स्कॉलरशिप हम ऑफर कर रहे हैं, फ्यूचर लीडर स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट। उसमें 20% ट्यूशन फी रिडक्शन है और ये इनिशियल जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का डिपॉजिट पे करना होता है आफ्टर गेटिंग अनकंडीशनल ऑफर लेटर, उसमें एडजस्टेबल होगा। और अगर आप थ्रू आउट, ये बेसिकली थ्रू आउट डिग्री पे अप्लाई होता है, अगर आप वहाँ पे कमेंट्स करते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर और बाकी भी सेमेस्टर सक्सेसफुली पास कर लेते हैं तो आपकी ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी फॉर फुल 2 इयर्स। और सर आपकी रैंकिंग के हवाले से यूनिवर्सिटी कौन से रैंक पे आती है ऑस्ट्रेलिया में? ये ऑस्ट्रेलिया में वी आर रैंक्ड एट नंबर 15, और अगर ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग की आउट बात ऑफ? करें, ये ऑलमोस्ट 40 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं इन ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम ये बेसिकली मैं आपको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बता रहा हूँ रिसेंटली जो रिलीज हुई हैं। और अगर वर्ल्ड रैंकिंग के हवाले से बात करें तो वी आर रैंक अंडर टॉप 250 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। Top 1%. सर टोटल आप कितने मास्टर्स के प्रोग्राम ऑफर करते हैं टोटल? जी ऑल टुगेदर हमारे पास 480 प्लस जो है ना डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसमें मास्टर्स बाय कोर्स वर्क, रिसर्च, सारे प्रोग्राम्स हैं वो इंक्लूड करके मैं आपको इन टोटल बता रहा हूँ जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। Okay, that's it. I think जी सुमित। your student है जी। लाइन पे, आप उनको भी देख लें। अस्सलाम जी, जी, वालेकुम। सुमित आवाज आ रही है आपको? सर मेरा हो गया बस सर, मैंने जो ठीक है पूछना था सुमित, पूछ आप लिया। अपना जी जी बिल्कुल, मैं नेक्स्ट इंक्वायरी से पहले सुमित को कुछ कहना चाहूंगा। सुमित अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें मेंशन कर दें इनबॉक्स पर ताकि हम फर्दर भी डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर लाइव सेशन। सर अगर आप आपकी कोई सर आपको कोई स्टाफ में खालिद है, उनसे मेरी बात हो गई है, मैं मंडे को मीटिंग भी उनकी शायद। चलें ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर इंक्वायरी। थैंक यू सो मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल वहाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर ठीक है, आप सुनाए ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। जी बताइएगा क्या सर इंक्वायरी मैंने अभी आपकी? पिछले ना 2019 में FSC पास की है प्री इंजीनियरिंग 65% मार्क्स से। ठीक है। और अब मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक हो गया। जी फहीम साहब बताइएगा। जी हमारे पास बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए पाथवे अवेलेबल है, एडवांस डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल, और उसके बाद आप बेसिकली परसू कर सकते हैं अपने बैचलर डिग्री, प्रोग्रेस कर जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिप्लोमा, और इट विल कॉस्ट यू अराउंड 38,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और फेब में हमारा अपकमिंग इनटेक है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइल्स करना पड़ेगा। मिनिमम जो एंट्री क्राइटेरिया है वो 6.65% होनी चाहिए आपकी इन FSC, प्लस आपको आइल्स 5.5, नो बैंड लेस देन 5.0 इन ईच मॉड्यूल करना पड़ेगा। तो ये बेसिक 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स HR कंसल्टेंट्स की टीम के साथ शेयर कर लीजिएगा तो ये आपको गाइड कर देंगे। और सर ये जो फीस है ये होल फीस है या सेमेस्टर वाइज एक सेमेस्टर की है? नहीं, ये बेसिकली मैं आपको पर एनम ट्यूशन फी बता रहा हूँ। इनिशियली आपको सेमेस्टर की ट्यूशन फी पे करनी होती है, यानी हाफ ऑफ
द ट्यूशन फी जो है मैंने आपको बताई है वो इनिशियली यहाँ से आप पे करके जाएंगे। तो सर उधर उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं होंगी कि टोटल फर्स्ट सेमेस्टर की फी पे करना पड़ेगी? नहीं, इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फी पे करके जाएंगे और वहां पे भी इसी तरह सेमेस्टर वाइज आप ट्यूशन फी पे करेंगे फ्यूचर में भी। ओके सर, थैंक यू। जी अब्दुल वहाब, इसके अलावा कोई क्यूरी है आपकी? नो सर। ठीक है अब्दुल वहाब, आप ऐसे करें कि अपने जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है ना, अभी मैट्रिक टू ऑनवर्ड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे जो भी अभी रिमेनिंग है, वो मिस इरम जावेद को फॉरवर्ड कर दें। आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 0322575780 इस पर अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करें। और भी जो भी आपकी क्यूरीज हैं इंशाल्लाह आफ्टर लाइव सेशन भी हम क्लियर कर देंगे, इंशाल्लाह इन कॉन्टैक्ट रहेंगे और ऑन स्पॉट आपकी एप्लीकेशन प्लेस करेंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स फौरन से व्हाट्सएप कीजिए मिस इरम को। थैंक यू सो मच फॉर योर इंक्वायरी। जी अस्सलाम वालेकुम सुफियान, आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम सुफियान, आवाज़ आ रही है आपको? नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। जी सुफियान, आवाज़ आ रही है आपको? क्या आ रही है आवाज़? जी कैसे हैं आप सुफियान, ठीक हैं? मैं पूछना चाहता था, मैं अभी डन ग्रेजुएशन इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम यूटी लाहौर with 3.1 GPA. So what are the opportunities for me in RMIT University? जी फहीम साहब, क्या ऑप्शन देना चाहेंगे? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट इट? आपने किस फील्ड में इंजीनियरिंग की है? इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में मैंने की है ग्रेजुएशन। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बेसिकली डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं एट पोस्ट ग्रेड लेवल। फॉर एग्जांपल वी आर ऑफरिंग मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन एरोस्पेस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव। सो वी हैव वेरी वाइड वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे देख लें ये, तो इसमें पर्टिकुलरली आपका किस में इंटरेस्ट है, किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, और तो फिर उसको आप परस्यू कर सकते हैं। आपकी जो डिग्री है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम। आपकी जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी है, और इसके साथ साथ आपको आइल्स रिक्वायर्ड होगा। वी रिक्वायर ओवरऑल 6.5, नो बैंड लेस देन 6.0। और हमारा जो अपकमिंग इनटेक है विच इज February 2021। अगर हम ट्यूशन फी के हवाले से बात करें तो एवरेज ट्यूशन फी आपको जो पर एनम कॉस्ट कर रही होगी अराउंड 39,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर एनम कॉस्ट करेगा, और ये 2 years प्रोग्राम होगा आपका। तो उसके अलावा जो चार्जेस होते हैं, मतलब बैंक स्टेटमेंट और इस तरह की सारी फॉर्मेलिटीज हमें करनी पड़ती हैं उसके बाद? जी उसके लिए आपको बेसिकली HR कंसल्टेंट्स गाइड करेंगे। हमारे पास जो होता है, अगर इनिशियली अप्लाई करेंगे, आपको सक्सेसफुली एडमिशन मिल जाता है, तो आपको इनिशियली फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी पे करनी होती है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की। और उसमें हम फ्यूचर लीडर स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। बेसिकली इट्स अ 20% ट्यूशन फी रिडक्शन। ये आपके ऑफर लेटर पे मेंशन होके जो है आएगा। तो इनिशियली आपको जो डिपॉजिट पे करना है वो 20% जो ट्यूशन फी है, पब्लिश ट्यूशन फी, उसमें से डिडक्ट हो जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करना होगा। तो इसमें अगर जी वदूद साहब क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वदूद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। सर आपका माइक ऑफ है, काइंडली माइक ऑन कीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के हवाले से इस स्टूडेंट का क्वेश्चन था। तो RMIT यूनिवर्सिटी मैन्युफैक्चरिंग प्योर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी दे रही है, ऑफर कर रही है, और इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ कॉम्बिनेशन भी है। देयर आर 2 मेन कोर्सेज हैं जो कि ऑफर कर रही है RMIT, एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और एक मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं RMIT में। तो इफ द स्टूडेंट हैव द, इन्होंने UET से पढ़ा हुआ है ना? जी। तो ये दोनों के लिए एलिजिबल हैं। और उसके अलावा कोई और ट्यूशन फी बोथ प्रोग्राम्स जो हैं इनकी सेम है, और दे आर अवेलेबल एट सिटी कैंपस जो हमारा मेन CBD में लोकेटेड है। जी। और ये मास्टर बाय कोर्स वर्क हैं दोनों? जी एग्जैक्टली।
और रिसर्च में भी मिल जाएगा और इवेंचुअली इसमें मैकेनिकल के साथ पीएचडी भी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल फॉर द कोर्स वर्क जो इनकी इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है वी हैव दैट ऑप्शन। जो स्कॉलरशिप जो ऑफर होती है वो सीजीपीए के वाइज चेंज भी होती है? अगर 3.3 से ऊपर आपका सीजीपीए तो आपकी स्कॉलरशिप बढ़ भी सकती है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है या कॉन्स्टेंटली एक ही 20% होती है ऑफर इसमें? हाँ जी, एज ऑफ नाउ हम स्टैंडर्ड 20% जो है ऑफर कर रहे हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। जी सुफियान, इसके अलावा कोई सवाल आपका? थैंक यू जी सुफियान, आप ऐसे करें, अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको भी रिपीट कर देता हूँ। नंबर मिस इरम जावेद का 0322575780 पर अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दें, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स भी इसके अलावा देखेंगे और भी अगर कोई अच्छी ऑप्शन इंशाल्लाह हो सकती है को डेफिनेटली आपको फैसिलिटेट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। और आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर फौरन से अभी अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम अली, आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम अली, आवाज आ रही है आपको? जी मिस इरम, आप कंटिन्यू किया कर सकती हैं अपना सवाल Okay, thank you very much. मिस्टर फहीम साहब से। We had a very detailed discussion. I think अभी हमारे पास सारी ही complete information फहीम साहब ने provide कर दी है। अंडरग्रेड्स और पोस्ट ग्रेड्स के कोर्सेज, स्कॉलरशिप और उनके हिसाब से और स्टूडेंट्स के भी जितने क्वेश्चन थे फॉर द टाइम बिंग, तो आई थिंक ये काफ़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और आई वुड लाइक टू से टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन, बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, तो हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर फर्दर डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्सेज यूनिवर्सिटी। 0322575780 नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज, और अपने डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर सकते हैं। एडमिशन के लिए वी कैन प्रोवाइड यू ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। और इस वक्त मैं फहीम भाई का थैंक यू करना चाहूँगी फॉर ऑल द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। आई होप इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और उन्होंने अपनी इस लिहाज से काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्पफुल होगी उनको डिसीजन के हिसाब से कि वो क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं किस कोर्स में, किस इंटेक के लिए। तो फ्रॉम माय पार्ट दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। और फहीम भाई से जाते हुए पूछना चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग दिस सेशन, और आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा स्टूडेंट्स के लिए। और आई एम श्योर कि वो अगर फर्दर उनको कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, यू गाइस हैव माय कॉन्टेक्ट डिटेल्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, वंस अगेन थैंक यू। सर लास्ट क्वेश्चन है एक इंक्वायरी का, जाते हुए लास्ट क्वेश्चन है, हम लेंगे डेफिनेटली स्टूडेंट्स। जी अस्सलाम वालेकुम नबील, बताइएगा। जी नबील, वालेकुम सलाम। जी नबील कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप बताइए क्या सवाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बताइए क्या सवाल है आपका? सर क्वेश्चन ये है, मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए स्टडी के लिए पूछना चाहता था ऑस्ट्रेलिया में कि उसके क्या प्रोसीजर है। मैंने आईटी में एडमिशन लेना है और मैंने एफएससी क्लियर की है 2019 में, और अभी करंटली मैं एनरोल हूँ बीएससीएस में 4 इयर्स के। किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं बीएससीएस? सर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज से कर रहा हूँ, मैं से बैक से। अच्छा, और आपके एफएससी में कितनी % मार्क्स थे? 50% मार्क्स थे। 50% और 60? 50 जी जी। उसमें अनफॉर्चुनेटली आपके जो एफएससी में मार्क्स हैं वो हमारे जो क्राइटेरिया है विच इज एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए इन ईयर 12, उसको आप मीट नहीं करते। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने ऑलरेडी अपनी बैचलर डिग्री स्टार्ट कर ली है तो इसको परसू करें, और एटलीस्ट 3 to 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप क्रेडिट ट्रांसफर्स के लिए हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास भी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफर होता है, इट्स अ 3 years प्रोग्राम। और अगर हम अभी करंट ट्यूशन फीस की बात करें तो अराउंड 36,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर एनम आपको कॉस्ट आएगी, ठीक है, फॉर 2021। तो आप इसको कंटिन्यू करें, 3 to 4 सेमेस्टर्स पास हो जाते हैं सक्सेसफुली, देन यू कैन अप्लाई फॉर क्रेडिट्स with minimum CGPA of 2.4.
मेरे जी जो एग्जैक्टली मेरी जो कॉलेज का जो है ना क्राइटेरिया वो परसेंटेज पे डिपेंड है, अभी वो सीजीपीए नहीं लेते करते वो। मेरा उसमें मेरा एटलीस्ट जी 65 और अबव मार्क्स आपके होने चाहिए। ओके, मेरा भी फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है, अभी नियरली एग्जाम्स हैं इन अक्टूबर में, तो उसके बाद क्या मैं कर सकता हूँ अप्लाई कि नहीं कर सकता? जी बिल्कुल, अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है 65% और अबव मार्क्स आप सिक्योर कर लेते हैं तो देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर बैचलर। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? पाकिस्तानी कितने PKR बन जाएंगे इसके? ये अगर करंट जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उसको अगर कैलकुलेट करें तो अराउंड 4 मिलियन रुपीस प्लस आपकी अमाउंट बनेगी पर एनम। एक साल के लिए। जी, तो इसके आइल्स का तो कोर्स लाजमी नहीं है क्योंकि अभी तक किया नहीं है। आइल्स रिक्वायर्ड होगा, आइल्स मैंडेटोरी है, उसमें आपको ओवरऑल 6.5 नो बैंड लेस देन 6.0 रिक्वायर्ड है फॉर बैचलर डिग्री। अभी आपने पीछे कुछ मिनट पहले आपने कहा था कि आइल्स कुछ में ज़रूरी है कुछ में नहीं ज़रूरी, क्योंकि वो आपके प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं उसके लिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आइल्स कुछ प्रोग्राम्स के लिए ज़रूरी है और कुछ में नहीं। मैं ये बता रहा था कि वो वेरी करता है कोर्स टू कोर्स। अगर आप अप्लाई करते हैं फाउंडेशन लीडिंग टू बैचलर देन वी रिक्वायर ओवरऑल 5.5 नो बैंड लेस देन 5.0। अगर आप डिप्लोमा के थ्रू अप्लाई करते हैं डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर, बेसिकली दीज आर द पाथवे प्रोग्राम्स, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग ईयर 12 स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हमारे पास फॉर अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स। तो इसलिए वो कोर्स टू कोर्स वेरी करता है एंट्री रिक्वायरमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोग्राम्स में बिल्कुल आइल्स रिक्वायर्ड ही नहीं है। आइल्स तो मैंडेटोरी है, वो करना पड़ेगा आपको। और इसका जब अगर मैं 65% मार्क्स लेता हूँ परसेंटेज फर्स्ट ईयर में, तो उसका FSC के 50% मार्क्स से कोई होगा तो नहीं इशू? उसमें ज़ाहिर है ये केस टू केस वेरी करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो वो हमारी जो एडमिशन टीम है वो डिस्कस करती है विद फैकल्टी और वो केस टू केस बेसिस पे अप्रूवल मिल जाती हैं। अदरवाइज अगर स्ट्रेट अवे ऑन द बेसिस ऑफ ईयर 12 यानी FSC की बेस पे अप्लाई करेंगे देन यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपके 50% मार्क्स हैं और हमारी रिक्वायरमेंट इससे हाई है। ओके, यही था मेरा सवाल। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी क्यूरी है आप मिस इरम जावेद से कांटेक्ट कर सकते हैं। नबील, मिस इरम जावेद का स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है 032257578004, तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर कोई क्यूरी है तो वो आपकी क्लियर कर देंगी। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू। जी लास्ट क्यूरी है आज की हमारे पास नेमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम नेमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम नेमतुल्लाह, आवाज आ रही है आपको? आई थिंक वो जी मिस इरम कंटिन्यू करते हैं हम। आप वाइंड अप की तरफ जा रहे थे जी, फिर बताइएगा। जी बिल्कुल, यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक वी हैव प्रोवाइडेड एंड डिस्कस्ड क्वाइट इन डिटेल ऑल द कोर्सेज और सारी ही इंफॉर्मेशन हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर ली है। और RMIT के लिए आई थिंक हूएवर इज इंटरेस्टेड उनके लिए ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। एंड यू कैन अप्लाई। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है 0322575757। फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं और रिमेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग bank statement or other financial documents we can assist you on this number। और फहीम भाई को once again thank you करेंगे for taking up the time for joining us in this session। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे correspondence रहेगी। That's it from me। Thank you जी, thank you once again। Thank you so much to both of you that you join us today। और मैं अपने व्यूअर से भी यही कहना चाहूँगा, जैसा कि आज हमारा बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, आपकी जो भी इंक्वायरीज हैं, अगर आप समझते हैं आपकी इंक्वायरी यहाँ पर मिस हो चुकी है या आपकी कोई ऐसा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आप मिस इरम से इस्लामाबाद हमारे HR के हेड ऑफिस में अवेलेबल होती हैं। वो स्टूडेंट स्पेशली जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, मिलना चाहते हैं मिस इरम को, विजिट कर सकते हैं अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्लस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज के साथ, और मिस इरम से फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान से वो स्टूडेंट्स जो हमारे ऑफिस में विजिट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते किसी भी रीज़न की वजह से,
तो उनके लिए भी HR कंसल्टेंट प्रॉपर फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है। आप हमें अपना स्काइप पर ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपका लाइव केस भी अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी ऐसे सिटीज से हैं जो विजिट नहीं कर पा रहे। तो मैं आज का अपना सेशन हमारा यहीं पर एंड करना चाहूँगा। वंस अगेन थैंक्स टू बोथ ऑफ यू दैट यू जॉइन अस टुडे, और अपने तमाम व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और ऐसी अपनी इंक्वायरीज को प्लेस कीजिए। इंशाल्लाह ऐसे ही HR कंसल्टेंट्स के डेली बेसिस पर आपके लिए लाइव सेशन होंगे, और हमें ज्वाइन कीजिए HR के पेज पर। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।